काय वाले का आगे जाने वो आगे जाता है त्यांची गाडी ये आगे आगे जाती है तो ये खराब करता अरे मैं भी जाऊँगा इसमें ले ले और ले ले है क्या आता ये लोग का काम है पूरा ये लोग ये चीज़ का ऐसा गाड़ी ऑब्वियसली करेंगे अंदर बाबा करने में वो पीसफुल है काय काय आता माझा ऑफिस मुलगा आहे ना तो ये जॉन की जैसे ये ना नहीं नहीं ओवैस हरिमंगल ये सब इसके भाई ऐसी थे आवेश ठीक है सिद्धेश मेरा दोस्त है मैंने उसको भी बोली कि तू मेरा दोस्त है गाड़ी लेगा कपड़े क्या मालूम हम लोग भी वही पूछ रहे कौन है वो गुस्सा था मेरे को देखिए ना मुझे तो ये क्या हाँ तो आप मरी बसला था मैडम वाला हाँ थोड़ा लेंगे ना थोड़ा सा लेंगे ना थोड़ा साथ
सर कितना यांना थोडं मागे घ्या ना प्लीज तिकडनं जाऊ ते हॅलो रिक्वेस्ट करा गेडम आहे ना गेडम होते ना आप लोग फोटो बताना शाम मेडिकल सिनेमा की एक नई भाषा को जन्म दिया, एक नया और वही उनका अंतिम संस्कार के लिए और कहीं ना कहीं आज वो बड़ी विदा दे रहे हैं श्याम बेनेगल जी को। श्याम बेनेगल जी को बनाई इतना बढ़िया शो भारत को जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर की नम आंखें बता रही हैं, उनकी उदासी बता रही है कि अब श्याम बाबू पाएंगे, उनका अभिवादन कर पाएंगे और बस यादों में रह जाएंगे। श्याम मेडिकल नसरुद्दीन शाह यहाँ पर मौजूद है, रत्ना पाठक शाह मौजूद है, मोहन ईरानी
संगीत उतारेगी उतार संगीत Saab, it's an end of the glorious chapter of Indian cinema. How do you remember the legendary filmmaker? I remember him as a boy. मोबाइल नीचे लेना है I remember him as a boy when I first saw Ankur. I saw a photograph of him and Govind Nihalani. Shabana Azmi walking in the wilderness. I thought film was a very glamorous thing. They made this beautiful film called Ankur, and I said to myself, if someday I become an actor, I just wish I had a chance to work with him. And then one fine day he called me maybe 30-35 years after that later and asked me to do Well Done Abba. I have never cried leaving a film set. But on that day I cried. I don't know how I'm holding myself up today. I cried because I knew that that experience will never come back in my life. Never again. I learned so much. I learned about cinema, life, general knowledge, literature, art, humanity, and most of all, humor. And he treated everybody equally, with equality. Mostly, spending time with him was like an experience. So we will miss him at the end of an era. There is no doubt about it. At the end of an era, of a kind of cinema, that every month somewhere there would be a retrospective of his films in some corner of the planet. And he would go, he would travel a lot. And the last few years, no, he could not. But I remember, where are you going? I'm going to Chile. Where are you going? I'm going to Venezuela. Where are you going? I'm going to Japan. And everywhere they would play a retrospective of his films. Such was his legacy. I think everybody over here and the rest of the country lost somebody very, very truly great. Sir, my last question. He's a pioneer of parallel cinema, what we understand, and new wave in Indian cinema. What is the loss and how will the fraternity will come on this loss? See, there can only be one Shyam Benegal, right? I think youngsters should go into his archives, watch his films, find that inspiration. Maybe in his passing, he will leave us a gift for us to remind us, have a look at my films. They will learn something from it. I think Ankur was, for me, most heartbreaking. It was something like Rishida asked him, why is the sound in your film so different? He said, because I'm shooting on location. He never did the dubbing. So he brought back, even technique and aesthetics and storytelling. And he told me one thing I'll never forget. एक सब किस तरह से करते हैं सर एक लाइन सर एक I'm not there sir please don't disturb please उम्दा फिल्म मेकर थे और हमेशा याद आएंगे। कहा जाता है कोई भी चला जाए तो एक चला गया, लेकिन श्याम बेनेगल साहब के लिए बिल्कुल सही। He was the father of parallel cinema in Hindi film. 1974, that means 50 years. 50 साल पहले उन्होंने अंकुर बनाई थी और इन 50 वर्षों में उन्होंने जो हिंदी सिनेमा का जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा था, नॉन ट्रेडिशनल सिनेमा, रियलिस्टिक सिनेमा था, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा और वाकई उन्होंने इसे जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड में फिल्म क्लब्स हैं तो उनका जो एपिक बॉडी उन्होंने एक इलेक्शन करवाया था कि 100 बेस्ट डायरेक्टर्स दुनिया में कौन होंगे, तो उसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 2 डायरेक्टर्स का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ। उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, गुलवेदा में और सरदारी बेगम में, और वो
मेरे लिए एक तजुर्बा था, इसलिए कि वो एक नई तरह की फिल्में थी, नया उसका मिजाज था, नया उसका डायलॉग था, गीत भी बिल्कुल अलग तरह का। बहुत बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और वाकई एक ऐसी जगह खाली हुई है जो भरने। शबाना मैम ने भी अंकुर से शुरुआत की थी और उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। You recently celebrated his 90th birthday, the family, friends together. Yes. Tell us the mood that was there then. Is that a happy It's so moment? unfortunate that time only Shabana was there and I was in Bombay, and today Shabana, who really treats him almost like a father, she is not in Bombay. Wherever she is, I spoke to her, she was crying. He's a wonderful person, a wonderful director. शबाना मैम ने भी अंकुर से शुरुआत की थी और उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था पहली ही फिल्म से। फीचर फिल्म कमी हमेशा रहेगी। अभी कौन है नेक्स्ट जनरेशन जगह बना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, थैंक यू। वो तो उसके फादर वही थे, उन्होंने अंकुर 74 में बनाई थी और 50 बरस में कितनी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने एक नई जागृति, नया चेतन, एक नया सोच हिंदी सिनेमा को दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी जगह हमेशा खाली रही। मैं तो यंगर जनरेशन को ही कहना चाहूँगा कि उनकी फिल्में, सारी फिल्में दोबारा देखो और उस काम को जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाओ। साहब, आप उन्हें कैसे याद करते हैं? सबसे करीबियों में से आप थे, आपकी जी हाँ, मैंने तो, मेरी किस्मत अच्छी है, पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था और मैंने उनकी 2 फिल्मों में गीत भी लिखे, सरदारी बेगम और जुबैदा में। तो जितने अच्छे डायरेक्टर थे उतने अच्छे इंसान थे और बहुत, जो भी लोग उन्हें जानते थे, मैं समझता हूँ उन्हें आज बहुत ही तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये कि यही ज़िंदगी है, जो आता है वो जाता है और उनका काम आगे बढ़ाया जाए। जो यंग जनरेशन, यंग डायरेक्टर्स हैं, उनका फ़र्ज़ ये है कि यही ट्रिब्यूट है कि जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई, आगे ऐसी फिल्में बने। सर उनकी एक कोई ऐसी खास बात जो उन्हें हिंदुस्तान में बाकी डायरेक्टरों से अलग बनाती थी? ये अलग बनाती है, देखिए, एक जो फिल्म क्लब्स का पूरा दुनिया में सारी जगह फिल्म क्लब है, उनका एक बार इलेक्शन हुआ है कि भाई आप 100 डायरेक्टर बताइए, जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ है सबसे दुनिया में 100 अच्छे डायरेक्टर कौन हुए। तो उनमें 2 हिंदुस्तानियों का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल। ये मामूली अचीवमेंट नहीं है जी। चलिए, ठीक। धन्यवाद एक शाम के बारे में कुछ बातें, जो यादें वो छोड़ गए? इस समय नहीं है, बस वही मैं बात कहूँगी वक्त नहीं है अभी। चलो अभी आ जाइए। नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं यही कहूँगी कि सारे लोग, सारे लोग उनको लेके एक जैसे अनाथ हो जाते हैं ना, वैसे सारे लोग इस समय बहुत दुखी हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो उनका योगदान है वो भी आप नहीं भुला सकते हैं। थैंक यू। आता गाड़ी है इधर ला, काम कर, तू उधर हाँ, तू साइड में आ जा। It is really unfortunate. You know, there are some people in your life, with them you feel कि he is always going to be there and going to be a pillar all along our lives. But that's not the case. He was my friend, philosopher, guide, mentor. He has changed my life, and I feel really very, very sad today that the encyclopedia of filmmaking is no more. His knowledge, his craft, his passion cannot be duplicated. His legacy, how will the legacy go forward? I want to know from you, somebody who's considered him as a mentor. How will this legacy could take go forward? I'm getting goosebumps while talking. It is, you know, what is most heartening is those films of. तो सर, एक फिल्म जगत के बहुत बड़े निर्माता इस वक्त हमारे बीच नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में जो छोड़ गए?
वो तो लेगेसी तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि श्याम बाबू अपने आप में अकेले थे। मैं उनके साथ 2003 से काम कर रहा हूँ। नेताजी किया, फिर अभी ये मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन किया, अभी उनके बर्थडे पे हम लोग साथ में सेलिब्रेट किया उनके ऑफिस में। तो उनकी जो स्पिरिट थी, जहाँ उनका अपने टाइप का सिनेमा था, जो कहीं पे भी मतलब भी कैसे भी फिल्म लाइन में दौर आए, कैसा सिनेमा चला नहीं चला, उनका अपना सिनेमा था। तो आज भी 60 साल से अपना सिनेमा बनाते रहे, चलता रहा, और वो हमेशा मिस होएगा। और कोई एक ऐसी बात सर जो उन्हें बाकी निर्देशकों से अलग बनाती थी? उनका पूरा सिनेमा ही देखिए सबसे अलग था, उनका पूरा सिनेमा ही सबसे अलग था। तो वो तो आप देखो सब ये वजह। कुछ एक आखिरी शब्द अगर आपको कहना हो? उनकी स्पिरिट से बहुत कुछ सीखने को है कि आज से जो और लोगों को कैसे जोड़ते थे, आज 40-50 साल पहले भी जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, आज भी उनकी रिस्पेक्ट और वो काम करने के लिए कैसे, ये सब चीज़ें सीखने की उनसे। ठीक, ओके। कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, इट्स अ ह्यूज लॉस which is personal as well as for the nation and for the entire world, the cinema he's given us, and we are still processing, so I have not much to say. Thank you madam. अच्छी यादें, बहुत सारी आज भी अगर वो यादें इतनी ताज़ा है तो आप समझ सकती है कि आज 16-18 साल हो गए हम काम किए हुए, लेकिन आज भी वेलकम टू सज्जनपुर रिमेन्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शूटिंग एक्सपीरियंसेस, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ श्याम सर। जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने काम किया, जो हमें फ्रीडम दिया, जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। उनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। पायनियर ऑफ पैरेलल सिनेमा। एब्सोल्युटली, मतलब जिस कन्विक्शन से अपनी कहानियाँ उन्होंने बताई, उसके पीछे सशक्त खड़े रहे। आज हम इस बात का इनके साथ काम और इन्हें जितना भी जाना, इनकी जो भी फिल्में देखी थी मैं बहुत छोटे थे, उसी के थ्रू जाना। प्रिया के साथ हमने काम किया, उनकी बेटी के साथ। ये तो सब ऐसा इंसान, ऐसा आर्टिस्ट एक पूरी जनरेशन में एकाध होता है, बहुत बड़ा गैप है सोसाइटी को लेके, क्योंकि अक्सर उनकी जितनी भी मूवीज़ है एक मैसेज रहता है सोसाइटी को। आजकल डायरेक्शन कम होते हैं जो मैसेज ग्लैमरस वर्ल्ड में इस तरह के डायरेक्टर आना, कभी रिप्लेसमेंट हो सकता है? पता नहीं यार, हम तो चाहते हैं कैसे और डायरेक्टर्स आएँ, पर हाँ श्याम बाबू जैसा इतना महान आदमी अब पता नहीं कैसे। ये एक जगह ऐसी है, ये खाली जगह जिसे भरना शायद बहुत मुश्किल है। सर वन स्पेशल थिंग जो उनको बाकी डायरेक्टर से अलग बनाती है, आई टॉक अबाउट द लेगेसी एंड इतने फिल्म्स की जो हिस्ट्री रही है। आप उनकी फिल्में ही देखिए, उसी से पता चलता है यार वो कितने फेयरलेस थे, और उनका जो प्यार था सिर्फ कहानियों के प्रति, किरदारों के प्रति। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ये सोच के फिल्म बनाई होगी। मैं तो मिला नहीं हूँ, पर उनकी फिल्में देख के लगता है कभी ये सोच के नहीं बनाई होगी कितना कमाएगी, कहाँ से आएगी। पर थैंक यू। हेलो अभी आया? हेलो, हाँ अभी आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे ना IIFL में रेफरेंस नहीं